Okay, look at the first question we have for today's lecture from the topic of height and distance. Look at this statement of the first question. The angle of elevation of the top of the tower from two points A and B at a distance x meter and x plus 5 meter from the base of a tower of height 6 meter and in the same straight line with it are complementary. So remember the angle of elevations, they are basically complementary. So it means the sum of the angles is coming out to be equal to 90 degree. So we have to find the value of x. This question appeared in the year 2024 first part, first attempt. So let us draw a diagram. ये देखिए बच्चे, ये आपके पास सपोज करो दिस इज गोइंग टू बी अ टावर और इसका जो हाइट आपको दिया हुआ है वो है आपके पास 6. Now we are considering the 2 points on the ground level. अब देखिए इसमें जो 2 पॉइंट्स ऑफ ग्राउंड लेवल पे रहे हैं उसमें क्या है कि जो ए पॉइंट है वो डिस्टेंस एक्स पे है और बी जो है वो आपके पास एक्स प्लस 5 मीटर. सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज सपोज कैपिटल ए and this point as capital B. So I think it should be very clear to all of you that this is going to be x, then this is going to be your 5. So that the distance, complete distance, I mean to say this distance जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ना ये आपके पास बन जाएगा ऑटोमेटिकली x प्लस 5. और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये वजह आपका बन जाएगा सिंपली एज x. देखिए अब आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. ओके, सो नाउ यू जॉइन द टॉप ऑफ द टावर with the point A and then you join the top of the tower from the point B. ये हो जाए आपकी पिक्चर है, ठीक है. तो अब इसमें आपने करना क्या है, मुझे वैल्यूट करके बताना है द एक्स का वैल्यू कितना. बताइए इसमें स्टार्ट कैसे करें मुझे, ये ध्यान रखिएगा. इस समय अगर मैं सपोज करो इस एंगल को लेके चलता हूं, मान लीजिए ये आपका एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अगर मान लीजिए आपका बीटा है, तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. So we can consider the angle beta as 90 minus alpha. Now you tell me how will you start it? Suppose this is going to be your C position and this is going to be the D position. गुरमन कैसे स्टार्ट करूं मुझे मैं यहाँ पे? पहले बच्चे आप एक काम करिएगा, ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करोगे? ट्रायंगल कंसिडर करिएगा यहाँ पर ए सी डी. Yes, sir. ए सी डी में इफ यू फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा, Sir, height of tower upon distance from tower. this comes out to be your 6 by x. Yes. And again in the triangle, I think if you are considering the triangle DCB, in the triangle DCB, the tangent of angle alpha is coming out to be equal to how much? 6 upon x plus 5. It is going to be 6 upon x plus 5. Okay. Now, I think if you talk about the tangent of angle beta, so this is going to be the first equation and this is going to be the second equation. Now remember tangent of angle beta from equation 1, if you consider beta as 90 minus alpha, so tangent of 90 minus alpha is coming out to be 6 by x, which clearly indicates that tangent of 90 minus alpha will become cot alpha. So cot alpha is coming out to be 6 upon x. Now I think from equation number third,
we know cot of angle alpha from equation number 2, we know what is tangent of alpha. So इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी. अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 with the equation number 3, so I think tan alpha into cot alpha will become 1. So this will become equal to 6 upon x plus 5 multiplied with 6 upon x. I hope understand what I mean to say. तो अच्छा, यहां से अगर आप इसको एवेल्युएट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी योर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव is एक्स equal to 4. इज इक्वल टू हाउ मच? 4. इज इक्वल टू 4 और 36. 6. ऐसे आएगा ना मुझे. वो तो आप इवेल्युएट करके बता रहे हैं ना मुझे. Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 5x बिल्कुल ठीक है मुझे. -36 इज इक्वल टू 0, तो 36 के जो फैक्टर बनाइएगा बिल्कुल सही है. इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 9x -4x -36 इक्वल टू 0. और जब आप यहां से वैल्यूएशन करेंगे तो आपकी x की दो पॉसिबिलिटीज आएंगी. x या तो आपका -9 आएगा या फिर आपका 4 आएगा, बट x आपका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो x शुड इक्वल टू 4 मीटर. सो ए पार्ट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Any question you have in your mind, any doubt, you are free to ask. With any question, please. No, sir. No, sir. Look at the next question here. Now, in the next problem, look at the statement of the question. From a point X on a bridge across a river, the angle of depression of the 2 points P and Q on the banks on the opposite side of a river are alpha and beta. He's talking about the angle of depression. Okay. If the point X is at a height h above the surface of the river, what is the width of the river? If alpha and beta, they are again going to be complementary. देखो, इस क्वेश्चन में आप अगर स्टार्ट करेंगे तो सपोज करो बच्चे, ये आपके पास आ गया. मान लीजिए आपका पॉइंट एक्स जो है वो आपके पास एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ रिवर है. सपोज करो बच्चे, ये आपके पास जो है यहां पे आपका एक्स है. ये आ गया आपका एक्स. ये एक्स जो है वो आपका ब्रिज के ऊपर है. और दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं पी एंड क्यू ऑन द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर. सो सपोज दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट पी, और यहां पे बचे आपके पास मान लीजिए पॉइंट क्यू. अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो आई होप अंडरस्टैंड. मैं अब क्या करूंगा, मैं अब यहां पर ज्वाइन करूंगा. ये ऐसे हो जाएगा मुझे. उसके बाद मैं क्यू को ज्वाइन करूंगा एक्स के साथ. देखिए, अब आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है. ये एंगल वजह आपके पास जो है ना, देखो, अगर ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये अल्फा है, और ये आपको दिया हुआ है से बीटा. अब आप क्या करिएगा, आपको विड्थ ऑफ द रिवर बताना है. ठीक है. पी एंड क्यू को हम ज्वाइन करते हैं. नाउ let us find out the width. So width means we have to find PQ. Now, Gurman, just tell me, if angle of depression at the point X, whenever you are observing the P, it is going to be alpha, then this angle has to be alpha, isn't it? Yes. I think this angle has to be beta. अब आपको जो निकालना है मुझे, वो बेसिकली आपके पास पी क्यू है. ये निकाल.
अब आपको याद होगा, मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ, यहाँ हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ अजय कि इस समय ये दोनों ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट्स जो है ना, वो आपके सी एक्स जो है उसके अपोजिट साइड पे है। तो पी क्यू जो लेंथ है ना, अगर हम उसकी बात करें, देन द पी क्यू लेंथ will come out to be equals to h, which is basically the length of cx divided by, it is going to be cot of angle alpha plus cot of angle beta। ये हम लोगों ने केस डिस्कस किया था आपके साथ। अब यहां पर क्या है कि आपके अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, सो ऑटोमेटिकली सपोज बीटा इज गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू 90 माइनस। So in this particular problem, if you talk about the length PQ will come out to be h divided by, I think, cot of angle alpha plus cot of angle 90 minus alpha, which comes out to be tangent of alpha. Because I have to replace this beta by 90 minus alpha. अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पी क्यू जो है ना, जो वो किसके इक्वल होगा? पी क्यू बनेगा एच अपॉन टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। सो कॉट अल्फा इज कमिंग आउट टू बी कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, एंड टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा विल कम आउट टू बी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो जो यहां से आई थिंक द पी क्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? पी क्यू बन जाएगा एच टाइम्स, ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ एंगल अल्फा कंप्लीट डिवाइडेड बाय, ये वजह आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं। सो आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टू बी क्लियर कट कि अब आपके पास यहां पर क्या आएगा। कहीं कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बताइएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक होगा सो प्लीज टेल मी। कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूं तो बताइएगा प्लीज। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं, मैं ये क्लियर कर दूं आपको। वो मिस्टेक क्या हो रहा है आप में से कोई मुझे बताएगा? देखो मिस्टेक ये हो रहा है कि जब हम आपको फॉर्मूला बताए थे तो हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि इस समय इस फॉर्मूले में आपका जो एच होता है ना अजय, वो किसके बराबर होता है? देखो आपको याद होगा तो यहां पर पी क्यू नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका पी क्यू। ये होगा आपके पास पी क्यू यहां पर, और आपका जो हाइट होगा वो एच हम निकालते हैं जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे? देखो चेंजेस ये होंगे कि वी हैव टू फाइंड पी क्यू। सो पी क्यू कितना बनेगा, मैं यहां पर रब कर रहा हूं, ये सब रब होगा यहां से। पी क्यू जो बनेगा दैट विल बी एच टाइम्स, देखो इट इज गोइंग टू बी एच टाइम्स, ये हो जाएगा वजह आपके पास कॉट ऑफ एंगल अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा, जिसको अभी हमने आपको बताया कि वो टैन अल्फा बन जाएगा। अब अगला पोर्शन में रब कर रहा हूँ, सो बी केयरफुल बच्चे, फॉर्मूले जब आप लगा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमने फॉर्मूला किस पैटर्न में आपको बताया था। तो दिव्य ये बताओ, यहां से जो आपका पी क्यू है ना, इस कम आउट टू बी सिंपली एच टाइम्स कॉट अल्फा प्लस बचे आपके पास आ रहा है टेन अल्फा। तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन कैसे यूज करना है देखो, देखिए नाउ पी क्यू इज इक्वल्स टू एच टाइम्स, अब वो यूज करिए, कॉट अल्फा बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस इट इज गोइंग टू बी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। सो फ्रॉम हियर पी क्यू इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक एच टाइम्स, अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर बचे आपके पास आएगा कॉस के अल्फा प्लस आपका साइंस के अल्फा, नीचे आपको जो मिलेगा वो आपका होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। न्यूमरेटर पार्ट वन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो आई थिंक फ्रॉम हियर द पी क्यू इज कमिंग आउट टू बी एच टाइम्स वन डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सो रेसिप्रोकेशन प्रोसेस होगा, सो दिस कम्स आउट टू बी एच इंटू
cosecant of alpha multiplied by secant of alpha. So I think the answer is coming out to be your D part. H multiplied by secant alpha into cosecant alpha. इसमें कोई सवाल आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताया है, इसको करने का जो ये तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया, ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें केस नंबर 2 जो था उसको एक बार स्टडी करिए। चलिए लुक एट द थर्ड क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे हो जाए। A vertical pole of length 80 meter is situated on the horizontal plane. Okay, ये आ गया आपके पास, ये वर्टिकल पोल है मुझे। हाइट इसकी आपको दे रखी है 80 मीटर। द बेस ऑफ द पोल इज एट पी। ओके, सो ये आ गया मुझे आपका बेस। अब देखिए, देर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए बी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, अब देखिए, the angle of elevation of the top of the pole from A and B भी अल्फा एंड बीटा। ओके, पी ए आपका 64 मीटर है एंड ए बी जो है वो आपका 36 मीटर है। चलिए ये आगे बचा आपके पास इस तरह से। ये मान लीजिए आपका पी ए है, ये आ गया ए बी। पी ए जो है उसका लेंथ आपका 64 मीटर, ए बी का लेंथ 36 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल जिसको मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, अब आपके पास कैपिटल टी से, फ्रॉम ए जो है वो अल्फा है। And from B it is going to be beta. देखिए इसको मैं बीटा लेके चलूंगा क्योंकि इसमें क्लियर कट बोला हुआ है कि आपका अल्फा जो है वो बेसिकली आपका बीटा से बड़ा है। अब अच्छा यहां पर ये चीज आपके पास 80 है। नाउ हाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक द कंप्लीट डिस्टेंस पी बी इज कमिंग आउट टू बी 100। लुक एट द डायग्राम केयरफुली। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 100। सो पहले वजह आप एक काम करिएगा, पहले एक ट्राइंगल कंसिडर करिएगा यहां पर पीटीए। If you are considering the triangle PTA, in the triangle PTA, find out the value of tangent of angle alpha. I think tangent of alpha is coming out to be 80 by 64, which is basically equals to 5 by 4. Now, after this, consider the triangle PTB. Considering the triangle PTB, we are finding out the value of the tangent of angle beta, which comes out to be, I think, 80 upon 100, which means 8 by 10. And by the calculation part, it comes out to be 4 by 4. देखो tan अल्फा भी आपको मालूम है, tan बीटा भी आपको मालूम है, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए। देखिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू यूज अ फॉर्मूला दैट व्हाट इज गोइंग टू बी टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी योर टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब देखिए वैसे यहाँ पे टेन अल्फा और टेन बीटा जो आपके पास आए हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो वन हो जाता है। तो ये चीज अगर आपके पास वन आ गया, तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बन गया जीरो। तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जब जीरो बन गया, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी बी पार्ट। ये प्रॉब्लम है जो आपका 2024 का सेकंड अटेम्प्ट का प्रॉब्लम है। इसमें कोई डाउट है, किसी स्टेप पे आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज माय डियर। नो सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वैसे अभी आपका पेपर हुआ था संडे को, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 13th ऑफ September, सॉरी 13th ऑफ अप्रैल। देखो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए। A lamp is kept on a vertical pole. The height of the top of the lamp above the ground is given as, just a moment. The perpendicular distance of the bottom of the pole from two adjacent walls meeting perpendicularly are 0.7 meter and 2.4 meter. What is the distance of the top of the lamp from the corner point of the walls on the ground? पूरा प्रॉब्लम पहले एक बार पढ़िए। यहाँ पर जो मिसिंग है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। Just a minute. ये जो आपका हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प अबव द ग्राउंड जो है यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी 5 × √3/2 मीटर। The perpendicular distance of the bottom of the pole from two adjacent walls meeting perpendicularly are 0.7 meter and 2.4 मीटर। देखिए इसमें ऐसा है कि आप सपोज करो दो एडजेसेंट वॉल्स ऐसे हैं आपके पास, जैसे मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। ये दो एडजेसेंट वॉल्स आपके पास हैं जो कि परपेंडिकुलरली मीट कर रही हैं। और आप सपोज करो यहां पे वजह आपका बेसिकली जो है वो, ये मान लीजिए आपका एक पोल है। अब ये थोड़ा सा पिक्चर आपको थ्री डायमेंशन समझना पड़ेगा। ये आ गया हो जाए आपके पास बॉटम ऑफ द पोल, इसको मैं मार्क कर रहा हूं P। अब ये जो दो एडजेसेंट वॉल्स है ना, इनसे इसका डिस्टेंस है, तो ये थोड़ा थ्री डायमेंशन आएगा। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, जो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा एक, और एक आपका ये होगा। तो एक डिस्टेंस आपका 2.4 मीटर, और ये आपके पास दे रखा 0.7।
फिगर को थोड़ा थ्री डायमेंशन समझिएगा। अब आपको निकालना क्या है, ये है कॉर्नर पॉइंट ऑफ द वॉल्स। इस कॉर्नर पॉइंट को आप जोड़ेंगे विद द टॉप ऑफ द लेंथ। देखिए, ये आपके पास है। जैसे मैंने मुझे आपको बताया था कि ये पोर्शन को समझना, ये चीज आपके पास है 0.7। अब आप एक काम करिए, इस पर्टिकुलर पी को आप ज्वाइन कर दीजिए विद द कॉर्नर ऑफ द वॉल्स। अब गुरमन ये बताओ, हो जाए इतना करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम ऐसे हो जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट the distance of the top of the lamp from the corner. I mean to say, if it is going to be the top of the lamp T, this is the corner point of the two adjacent walls. तो बेसिकली आपको डिस्टेंस निकालना है CT। आप बच्चे इसमें एक बात समझना कि जो आपका ट्राइंगल है ना, यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो है आपका टीपीसी। तो ट्राइंगल जब टीपीसी बन रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो है ना ये आपके पास 90 होगा। तो पीटी जो है वो आपको गिवन है, इट इज गिवन एज सिंपली 5√3/2। पिक्चर आपको थोड़ा थ्री डायमेंशन याद रखना है। अब आप मुझे बताओ कि पीसी कैसे निकालेंगे। यस गुरमन, हाउ विल यू फाइंड पीसी। ये जो है ना, ये आपका पी क्यू जो है 2.4 है, पी एल आपका 0.7 है। तो आई थिंक वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीसी विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, क्योंकि ये भी आपके पास एक तरह से, आप इस समझेंगे प्रोसेस को, तो ये एंगल भी 90 होगा, तो ये भी 2.4 होगा। तो आई थिंक पीसी जो है वो आपका क्या बन जाएगा, जो पीसी है वो एक तरह से जो ग्राउंड लेवल पे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका डायगोनल हो जाएगा। तो पीसी इज कमिंग आउट टू बी, इट शुड इक्वल्स टू 2.4 होल स्क्वायर, जिसमें आप ऐड करेंगे वजह सिंपली एज 0.7 होल स्क्वायर। फिर आप इसका लेंगे कंप्लीट रूट। तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 2.54 होल स्क्वायर विल बिकम 5.76, प्लस आप ऐड करेंगे 0.49 कंप्लीट रूट। This comes out to be 6.25 complete root. And 6.25 complete root is coming out to be simply 2.5. So I think PC is coming out to be 2.5. Triangle TPC है, जिसमें आपका बेस जो है PC, it is coming out to be 2.5. PT is given as 5√3/2. Now we have to find from the triangle TPC, which is basically right angled at P, we have to find TC again by using the Pythagoras theorem. TC will come out to be 2.5 whole square, plus it will become 5√3/2 complete whole square, और इसका लेंगे आप कंप्लीट रूट। वो जो TC जो आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 6.25, प्लस इट विल बिकम 75/4। सो नाउ 6.25 में आप ऐड कर रहे हैं 75/4, 75/4 इज कमिंग आउट टू बी 18.75। So 6.25 when added with 18.75, this comes out to be basically your complete 25. And I think the root of 25 is coming out to be equal to 5. So the distance of the top of the lamp from the corner point of the walls on the ground is coming out to be 5 meter. So TC is coming out to be 5 meter. Any question, any doubt in your mind, you are free to ask. It's a wonderful question, my dear. ये भी आपके 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रॉब्लम।
Any question, Devit? Any question, Gurman? No, sir. Okay, let's move to the next one. Again, this question is again from this same year, 2025, first attempt. Look at this question. A tower subtends an angle of 60 degree at a point A on the same level as the foot of the tower. B is a point vertically above A and AB is equal to H. The angle of depression of the foot of the tower measured from B is 30 degree. What is the height of the tower? अब देखो इसमें क्या है कि a tower subtends an angle of 60 degree at a point A on the same level. Suppose ये टावर है आपके पास. अभी टावर क्या कर रहा है मुझे, आपका 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है एट ए पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर. अब देखिए इसमें यहां पर दिस इज गोइंग टू बी ए पॉइंट. दिस एंगल is subtended by the tower and it is equal to basically 60 degree. Now we are considering B as a point vertically above A. ये आगे हो जाए B point. The angle of depression of the foot of the tower measured from B is coming out to be 30 degree. Okay. और जो B को अब आप ज्वाइन करेंगे टावर के फुट से. Now this is the angle of depression which is given as 30 degree. If this is 30 degree, I think this has to be 30 degree. जो ये ए बी है और जो टावर है उसको मैं नाम दे रहा हूं, सपोज करो पी क्यू. ए बी का हाइट आपको एच दिया हुआ, स्मॉल एच. You have to find the height of the tower PQ. So how will you proceed? हम ऐसा एक आर्टिकल भी कर चुके हैं मुझे, बट इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हैं. आप पहले कंसिडर करो, अगर आर्टिकल आपको नहीं याद आ रहा तो आप कंसिडर करो ट्राइंगल PQA. So whenever you are considering the triangle PQA, so triangle PQ, I think the tangent of angle 60 degree is coming out to be simply equals to PQ divided by AP. Then again after this, you consider the triangle. I think tan 60 degrees coming out to be root 3. So root 3 will come out to be simply equals to PQ divided by AP. So from here, AP is coming out to be equals to PQ upon root 3, or you can say root 3 into AP is equal to PQ. हमें PQ ही निकालना है. फिर वजह आप करिएगा ट्राइंगल कंसिडर यहां पे. I think it is better to consider triangle ABP. In the triangle ABP, you find out the value of the tangent of 30 degrees. So tan 30 degrees coming out to be how much? It is basically your AB complete divided by AP. मैं इस प्रॉब्लम को आर्टिकल की तरह कर रहा हूं और आपके साथ जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो केसेस मैंने बता रखे हैं, आप उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. देखो यहां से tan 30 is coming out to be simply 1 by root 3. So 1 by root 3 is equals to H upon AP. So from here, the value of AP is coming out to be root 3 into H. अभी जो AP का वैल्यू आया हो इसको डाल दीजिएगा यहां पर.
क्योंकि हमें पी क्यू निकाल। सो आई थिंक फ्रॉम इक्वेशन टू we are putting the value of AP in equation 1. So equation 1 will give you root 3 multiplied by root 3 into H will become equals to PQ. So therefore the value of PQ is coming out to be simply equals to 3 times H, which is the required solution. So I think the answer is coming out to be your C part. Any question you have, any doubt in your mind, you are free to ask at any stage. ये वजह आपका अभी जो है 2025 30 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसी का प्रॉब्लम। सो आप ये भी देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस की आ रही हैं, तो हम इसमें क्यों ज्यादा जो है वो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, अगेन द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2025, अभी जो आपके पास हो। देखिए, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर आई थिंक सिक्स्थ वन। A man starting from a place P went X meter. X is given as more than 120 meter east before turning south. ओके, सपोज करो जो ये आपके पास स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से, अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लेस पी वेंट एक्स मीटर। सो देखो ऐसे है, यहां से गया वो आपके पास एक्स मीटर, एक्स इज गिवन एज मोर देन 120, ईस्ट की तरफ गया बिफोर टर्निंग साउथ, ही वेंट 40 मीटर स्ट्रेट, तो इसका मतलब टुवर्ड साउथ की तरफ जाएगा वो। कितना गया बच्चे, 40 मीटर। बिफोर टर्निंग टू वेस्ट ही वेंट 60 मीटर टू रीच अ प्लेस क्यू। इसका मतलब वो यहां पर, देखिए यहां से जब वो चला तो ये वजह उसने एक्स किया, उसके बाद वो 40 मीटर हुआ, उसके बाद यहां पहुंच के वो चलेगा अब वेस्ट की तरफ, तो चलेगा 60 मीटर। चलिए 60 मीटर चलते हैं। ये आ गया जो 60 मीटर। अब देखिए ये आपका 60, ये क्यू पे इस पे पहुंच गया। फ्रॉम क्यू ही वेंट 200 मीटर्स नॉर्थ। चलिए अब क्यू से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। नाउ ही रीच्ड एट पोजीशन आर। देखिए आर पे पहुंचा और ये जो चला है क्यू टू आर 200 मीटर। ओके, सो क्यू आर इज बेसिकली गिवन एज 200 मीटर। नाउ पी आर इज गिवन एज 200 मीटर, तो देखो ये पी है। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को करूंगा, क्यू आर आपके पास जो है वो 200 मीटर है, पी आर भी आपको दिया हुआ है 200 मीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए आई एम ज्वाइनिंग पी विद आर। मैं डायग्राम को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल में लगे कि क्यू आर और पी आर जो है वो बराबर है।
ये देखिए ऐसे। अब देखो डिस्टेंस पी आर इज गिवन एज 200, सो दिस इज गोइंग टू बी 200। क्यू आर इज ऑल्सो 200, तो अगर क्यू आर आपका 200 है तो ये तो वजह आपके पास 40 हो जाएगा ना यहां तक। तो क्यू एल 40 होगा तो एल आर बन जाएगा आपके पास 160। लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुली। अब देखो यहां से लेकर यहां तक जो है, पी से लेकर अगर मैं इस पोजीशन को एम कहता हूं और यहां पे टी बोलता हूं, तो पूरा का पूरा जो पीएम है वो एक्स है। अगर पीएम एक्स है तो ऑटोमेटिकली दिस पोर्शन इज कमिंग आउट टू बी योर x-60, क्योंकि एलएम आपका 60 हो जाएगा बिकॉज एलएम इज इक्वल टू क्यू टी। Now we have to find the value of x. So I think if you look at the figure carefully, we have a triangle PLR. So in the triangle PLR, I think we can apply the Pythagoras theorem because this angle is coming out to be 90. So whenever you are applying the Pythagoras theorem, so it comes out to be hypotenuse 200 square will come out to become equals to 160 square plus x-60 complete whole square. तो जो यहां से आई थिंक आपके पास x-60 कंप्लीट होल स्क्वायर विल कम आउट टू बिकम इक्वल्स टू 40,000। श्योर गुरमान, इज इट 200 स्क्वायर इज 40,000? 200 स्क्वायर, Yes. उसमें से कितना माइनस करूंगा मैं? 160 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 25600। So ultimately x-60 whole square is coming out to be equals to, this will become 14400. So I think x-60 will come out to become equals to 120. So यहाँ से वजह आपके पास x का जो वैल्यू होगा, this comes out to be simply equals to 180. So 180 meter is going to be the value of x. So the answer is coming out to be your D part. इसमें कहीं पर कोई डाउट है और जो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, द करंट प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ 13th of April. Any question you have, any doubt from the topic I have gone through, you can ask me please. No, sir, no doubt. चलिए यहाँ आकर के ना मुझे ये हमारा जो प्रोसेस है, आपका आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाता है और ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद आपका जब टेस्टिंग होगा तो इस टॉपिक से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टेस्ट भी इसके इंक्रीज हो जाएंगे आपके पास। Well, this is all we have for today's lecture. Thank you very much for your kind cooperation. Thank you, sir.